अगर आप लिमिट में कंफ्यूज हो रहे हो, वो tan इनवर्स ऑफ tan x में कंफ्यूज हो रहे हो, तो बस इतना ध्यान रखो, इंटीग्रेशन की डीलिंग कैसे करनी है उस चीज को, एक लिमिट के अच्छे कॉन्सेप्ट को जिसमें मुझे LHL RHL का टेक केयर करना पड़ेगा, उनको मर्ज करके देखो जी। tan x माइनस साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। अब tan इनवर्स ऑफ tan x का π/2 के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग बिहेवियर है। So, hello everybody. Since you all are aware, we are going through GRB Toppers Question Bank, Limit, Continuity, Differentiability and Differentiation Chapter. Exercise 1 के 5 questions के वीडियो आपके पास ऑलरेडी है इससे प्रीवियस वीडियो में. Now, in this video, we shall be starting with exercise 2 of Toppers Question Bank. Fine. Now, in this exercise, this is also a single correct exercise, and I have selected 5 questions from this exercise, जिसमें मुझे लगता है कि इसका डिस्कशन जरूरी है आप लोगों के साथ. फाइन. तो ये है सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज है, एंड दिस इज टॉपर्स क्वेश्चन बैंक LCDD एक्सरसाइज नंबर 2. ऑलराइट. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे. मैंने एक तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि हाउ डू वी डील विद these kind of functions. Alright, अगर आप ध्यान दोगे तो fx is 0 to x 5 plus 1 minus t mod dt अगर x 2 से ग्रेटर है. देखो 2 से लेसर है, then it is sorted. Got it? Now इसमें ना मैं पहले इस वाली ब्रांच के साथ में डीलिंग करूंगा. x more than 2 है. That means integration 0 to x 5 plus magnitude of 1 minus t dt. Now see, अगर t की वैल्यू 0 to 1 होती है तो we will open this modulus with a positive sign, or if t is more than 1 we'll open this with a negative sign. All right, that means integration 0 to 1 में तो we will write it 5 plus 1 minus t dt, and then from 1 to x, क्योंकि अपना x ऑलरेडी 2 से ग्रेटर है, 1 to x में this will be 5 plus t minus 1 dt. Am I clear? Now this is integration 0 to 1 6 minus t dt plus integration 1 to x 4 plus t dt. Got it? So this will be 6 minus t square by 2, that would be 1 by 2, plus this is 4, so 4x 4t integration हो जाएगा 4 times x minus 1, and this is x square by 2 minus 1 by 2. So your function became 6 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 and minus 4, so 1 plus 4x plus x square by 2. ये कब? जब अपना जो x है वो 2 से ग्रेटर है. So finally your fx came, fx is 1 plus 4x plus x square by 2 if x is greater than 2, and it is 5x plus 1 if x is less than 2. 5x plus 1 if x is less than or equal to 2. अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. ये अपना fx बन गया. m is the number of points of non differentiability for fx for all real x. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात वो कर रहा है. ठीक है, जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, कोई सीन नहीं है, नीचे भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई इशू नहीं है. द ओनली पॉसिबिलिटी दैट कैन अकर इज एट x इक्वल्स टू 2. गॉट इट? अब अगर मैं 2 पे लेफ्ट साइड वैल्यू देखूं, 5 2 10 प्लस 1 11. अगर मैं 2 के राइट साइड से वैल्यू देखूं, 8 10 11, तो सॉर्टेड है. लेकिन अगर मैं f डैश 2 माइनस की बात करूंगा, डेरिवेटिव, दैट वुड बी 5, एंड f डैश 2 प्लस की बात करूंगा तो इट विल बी x प्लस 4,
at x equals to 2, and that is going to be 4 and 2, 6. That means fx is non-differentiable at x equals to 2. fx is non-differentiable at x equals to 2. All right. So m is the number of points. So m की वैल्यू तो आ गई 1. Now, if a and b are positive numbers and limit x approaches to 0, this is 2. अब हम इस पे आते हैं. m की वैल्यू को I will place 1. So the question is limit x approaches to 0, 1 plus a cube, m को I have placed 1, 1 plus a cube plus 8 e raised to the power 1 by x, 8 e raised to the power 1 by x divided by 1 plus, now see this is 2 plus b square e to the power 1 by x. 1 plus 2 plus b square into e to the power 1 by x, and they are saying this is 2. Find the value of a square plus b square. Fine. Now see. अब देयर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का टेक केयर करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब x आपको 0 को अप्रोच कर रहा है, सपोज करो x 0 के राइट में है, तो e टू द पावर 1 by x लिख देता हूं मैं. As x approaches to 0 plus, then e to the power 1 by x approaches to infinite, and as x approaches to 0 minus, then e to the power 1 by x is going to be e to the power minus infinite, which is approaching to 0. That means अगर मैं इसमें LHL की बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये टर्म और ये पूरा टर्म हो जाएंगे 0. आंसर विल बी 1 plus a cube. They are saying it is 2. So a cube is equals to, sorry, a cube is equals to 1. All right, that means a is 1. Now, if you go with RHL, then limit x approaches to 0. Take e to the power 1 by x common. This will become 1 plus a cube e to the power minus 1 by x plus 8 divided by denominator also e to the power minus 1 by x plus 2 plus b square. That should be 2. Now see, this is cancelled. Yes, because it approaches to infinite. Ye 0, ye 0. That means 8 upon 2 plus b square goes 2. So b square plus b plus 2 is 4. So b square plus b minus 2 is 0. From there, you get b plus 2 into b minus 1, 0. So b can be minus 2 or 1. Is there any hint in the question? A and b are positive numbers. That means b is also 1. That means b is also 1. So your a square plus b square goes. Understood? Very simple question. Good question. और बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने, आप सोचो, इंटीग्रेशन की डीलिंग कैसे करनी है, उस चीज को, एक लिमिट के अच्छे कॉन्सेप्ट को जिसमें मुझे LHL RHL का टेक केयर करना पड़ेगा, उनको मर्ज कर दिया. ऑलराइट, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड अगर आपने ये अपने आप से सॉल्व किया होगा. दैट्स अ बिग अचीवमेंट इफ यू हैव डन इट ऑन योर ओन. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, see this one. fx is a function satisfying, और ये यहां पे आते ही एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन आपको दी हुई है. Do you see that? For every xy belongs to r plus. पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग हो रही है कि ये कुछ ना कुछ लॉग टाइप का फंक्शन है.
अब इसमें x की पावर x जा रहा है, y की पावर y जा रहा है, तो एक फीलिंग मुझे ये भी आ रही है कि कहीं ये x log x या x log y, मतलब x log x टाइप का फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, या 1/x log x कुछ इस तरह का। वो चलो हम उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव रियल एक्स पे दे रखा है तो लॉग की फीलिंग और आती है। डिफरेंस को डिवीजन में कन्वर्ट किया हुआ है, दिख रहा है, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज वाई की पावर वाई अपॉन एक्स की पावर एक्स, समथिंग लाइक दिस। एफ डैश वन की वैल्यू वन दी हुई है, जी एक्स को एफ एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो एक फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं। अब आप देखो जो आपसे पूछा है ना, वो है ई टू द पावर में एल एन ऑफ जी आर, गॉट इट। तो ई और लॉग ही आपस में सेटल होते हैं, तो मुझे ना पूरी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा लॉग की फीलिंग आ रही है। बाकी चलो देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एफ डैश वन की बात की है तो फर्स्ट डेरिवेबल तो ये है। तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आता है? एफ डैश एक्स आता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, गॉट इट। इसमें मैं वो फर्स्ट डेफिनेशन जो इसने दी हुई है एफ एक्स माइनस एफ वाई की वो लगा देता हूं। अगर वो लगाऊंगा तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब सोचो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच है, वाई की जगह पे एक्स है, सो दैट वुड बी एक्स रेज टू द पावर एक्स, एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एक्स प्लस एच अपॉन एक्स टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ऑलराइट। अच्छा अब एक चीज सोचो, ये वाली जो वैल्यू है एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वैल्यू तो वन आ जाएगी, ये बनेगा एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एक्स। अगर ये एक्स की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एक्स है मतलब ये वन है, एफ ऑफ वन, ये एफ ऑफ वन है, नीचे जीरो है, तो इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए इस एफ ऑफ वन को क्या होना पड़ेगा? एफ ऑफ वन शुड बी जीरो। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑलराइट। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस एच टू द पावर एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एक्स प्लस एच अपॉन एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस ऑफ एफ वन अपॉन एच, गॉट इट। इसको ऐसे हम लिख लेते हैं नाउ। अब ये f1 माइनस एफ वन, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, फाइन। तो इसको ऐसे सोचूं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो x टू द पावर x अपॉन x प्लस h रेज टू द पावर x प्लस h। इसको ना ऐसे सोचेंगे एक बार हम, f ऑफ वन प्लस x प्लस h रेज टू द पावर x प्लस h अपॉन x टू द पावर x माइनस वन माइनस f1 upon h. Now see, as x approaches to 0, this value also approaches to 0. इसको मैं ऊपर और नीचे क्रिएट कर देता हूं, सो x प्लस एच रेज टू द पावर x प्लस एच अपॉन x टू द पावर x माइनस वन, सेम थिंग इन द न्यूमरेटर, x प्लस एच रेज टू द पावर x प्लस एच अपॉन x टू द पावर x माइनस वन। ये हमने ऊपर और नीचे क्रिएशन कर दी, गॉट इट। आफ्टर डूइंग दिस आप इतना रियलाइज कर रहे होंगे कि ये जो पूरी पूरी वैल्यू रखी है ये वाली, देखो ध्यान से, एफ ऑफ वन प्लस जीरो माइनस एफ वन अपॉन जीरो, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ डैश वन, यस और नो? तो क्वेश्चन ये बन गया, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस एच रेज टू द पावर एक्स प्लस एच, वहां पे आ जाएगा x प्लस एच रेज टू द पावर x प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर x अपॉन एक्स टू द पावर x डिवाइडेड बाय
h और ये बन गया साथ में f डैश 1। अब क्वेश्चन में ना मेरे को f डैश 1 की वैल्यू 1 दी हुई है। फाइन, नाउ इट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। नाउ सी, इससे ये कैंसिल, so this is x plus h raised to the power x plus h minus x to the power x upon h और साथ में एक रखा हुआ है x plus h raised to the power x plus h। अगर ये देखो, ये क्या है, as x approaches to 0 this is what derivative of x raised to the power x। got it? तो ये वैल्यू बन जाएगी x raised to the power x into 1 plus ln x, क्योंकि मुझे ही पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स होता है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। अच्छा, ये नीचे आ जाएगा फाइनली एक्स टू दी पावर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस आंसर गोज लाइक 1 प्लस एल एन एक्स। ये अपने पास आया एफ डैश एक्स। एम आई करेक्ट? नाउ इफ इट इज एफ डैश एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एल एन एक्स dx प्लस सम कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x प्लस कांस्टेंट, ये भी कैंसिल। सो दिस इज x ln x प्लस कांस्टेंट। अंडरस्टूड? देखो ध्यान से, नाउ मुझे ये भी पता था कि f1 0 है, तो उसको यहां पे रखूंगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स योर fx इज x ln x। मैं कह रहा था ना कि कुछ कुछ फीलिंग आ रही है कि ये x ln x या ln x अपॉन x टाइप का फंक्शन तो नहीं है। सो नाउ यू गॉट योर fx, तो इसका मतलब जो gx है वो ln x है, उसको उठा के आप वहां पे रखोगे, योर gx केम ln x, सो gr विल बी ln r। अब आप उसको e टू द पावर में मैनेज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो fx इज x ln x, तो यहां से gx क्या आ जाएगा, gx is given as fx upon x, that is ln x। अब जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसने e to the power sigma r from 2 to the power 5 ln, ओके, इसमें ना ये लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे ये कुछ टाइपिंग एरर हो गई है बुक में, ठीक है। सो नाउ gr will be what, ln2 plus ln3 plus ln4 plus ln5, that is ln 120, and e to the power ln 120, your answer will be 120। अंडरस्टूड? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जो इस तरह का एप्लीकेशन है ना, ये तो अनपैरेलल है। इसको सीख के तो आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि यार आज मैंने कुछ नया सीखा। फाइन, नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। Alpha is limit x approaches to pi by 2, this all is given, then find the value of this। Now see, पहले मैं अल्फा की बात करता हूं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। सो अल्फा इज लिमिट x approaches to pi by 2 अंडर रूट ऑफ, देखो जी, tan x माइनस साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। अब tan इनवर्स ऑफ tan x का पाई बाई 2 के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग बिहेवियर है। गॉट इट? तो मैं पहले LHL की बात करूंगा, LHL। तो अगर आपका x पाई बाई 2 से स्लाइटली लेसर है, अगर x पाई बाई 2 से स्लाइटली लेसर है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x डायरेक्टली x होगा। सो दिस गोज लाइक tan x माइनस साइन x अपॉन tan x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ tan x। अब देखो पाई बाई 2 के स्लाइटली लेसर पे ना tan x की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 माइनस इनसाइड द रूट, टेक tan x कॉमन, तो 1 माइनस साइन x अपॉन tan x, दैट इज secant x, सॉरी 1 माइनस साइन x अपॉन tan x, so this will be cos x upon, if you take tan x common from the denominator, it is 1 plus cos square of tan x upon tan x।
नाउ सी एज x अप्रोचेस टू पाई बाई टू ये वैल्यू हो जाएगी जीरो और ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ये cos स्क्वायर की वैल्यू कुछ -1/1 आएगी और नीचे इनफाइनाइट है तो इट विल गो जीरो, सो योर आंसर इज 1। अब ये LHL की बात है, मुझे RHL भी चेक करनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस, अगर ये दोनों सेम आती है, अगर ये दोनों सेम आती है तो मैं बोलूंगा कि यस अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में मोस्टली सेम ही आना चाहिए, ठीक है, बट चलो फिर भी एक बार हम कर सीख भी लेते हैं। नाउ इट इज अंडर रूट ऑफ tan x माइनस, नाउ tan इनवर्स ऑफ tan x will be, if x is more than pi by 2 then it is tan inverse of tan x minus pi, tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस पाई। अब एक बार सोच लेते हैं, अगर x पाई बाई टू से ग्रेटर है तो x माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई कर जाएगी, तो दिस वैल्यू विल बी x माइनस पाई, तो दिस विल बी साइन ऑफ x माइनस पाई अपॉन tan x प्लस cos square of tan x. So that is limit x approaching to pi by 2 plus, now inside the root it will be माइनस कॉमन ले लूंगा tan pi minus x which is tan x, sin pi minus x which is sin x, तो it will be tan x plus sin x upon tan x plus cos square of tan x, ये आ जाएगा। देखो सब कुछ सॉर्टेड है, वैसे ही है जैसे हमने सोचा हुआ है, ठीक है। नाउ एज x अप्रोचेस टू पाई बाई टू प्लस ये वैल्यू दिस tan x गोस माइनस इनफाइनाइट, अगेन इसको कॉमन लेंगे कैंसिल करेंगे, योर आंसर विल बिकम 1, सेम अप्रोच लाइक वी हैव डन इन लेफ्ट हैंड लिमिट। सो अब ये डिसाइड हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या है, वो 1 है। जैसे अल्फा की वैल्यू 1 डिसाइड हुई, योर fx इज व्हाट, tan x माइनस 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो है वो ये जा रहा है, पहले तो एक चीज देखो, f ऑफ 0 इज 0, तो अगर मैं h को 0 डालूंगा इट विल बी 3 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3 माइनस 2 मींस f1 कम्स व्हाट 10 माइनस 2 8, तो इट इज 8 माइनस 8 0, डिनोमिनेटर में इट विल बी 0 पे 3 प्लस 4 7 7 माइनस 5 2, f2 कितना आ रहा है, f2 इज 20 माइनस 8 दैट इज 12, नीचे भी यहां भी 12 है। तो अब आपने सिंपली इसमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, LH रूल लगाते ही 8 और 12 तो कैंसिल हो जाएंगे, एफ डैश ऑफ एफ डैश आएंगे, साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, गॉट इट। तो एल हॉस्पिटल लगा के दिखाता हूं आपको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, द क्वेश्चन इज 3 cos h प्लस 4 sin h माइनस 2, 3 cos h plus 4 sin h minus 2 minus 8 upon f of 3 e to the power h minus 5 sec h plus 4, 5 secant h plus 4 minus 12। अब ये 0/0 की फॉर्म है, ऑलराइट, इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3 cos h plus 4 sin h minus 2 into f dash of 3 cos h plus 4 sin h minus 2 minus 3 sin h plus 4 cos h divided by f dash of 3 e to the power h minus 5 secant h plus 4, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 e to the power h minus 5 sec h tan h, गॉट इट।
अब आपने जैसे ही इसमें 0 डाला, इट गोज लाइक लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा f-1। अच्छा, साइन 0 0, ये बन जाएगा 4। डिनोमिनेटर में अब तो लिमिट तो प्लेस कर ही दी है, आई डोंट रिक्वायर दिस एनी फर्दर। डिनोमिनेटर में इट विल बी f-3 + 4 7 - 5 2, and along with 3 और sec 0 1 10 0 0, तो इट गोज 0 into 3। नाउ अगर क्वेश्चन पे देखो तो क्वेश्चन में जो f-x है दैट इज 10 - 4x, यस और नो? तो f-1 will be 6 and f-2 will be 10 - 8 2, so that is 6 into 4 upon 2 into 3, so your answer should be 4, which is option D. Am I correct? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब देखो, अल्फा निकलवाने के लिए एस एच एल एच एल आर की जरूरत नहीं थी, ठीक है। पेपर में मैं होता तो सिर्फ शायद एल एच एल ही निकालता और मेरा काम चल जाता, गॉट इट। बट ठीक है, चलो ऐसा सीखने के लिए फिर उसमें उन्होंने आपसे एल हॉस्पिटल लगवा लिया। अल्फा का रोल बस इस क्वांटिटी को निकालने तक ही लिमिटेड था। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब आप एक चीज सोचो, सपोज करो आप लिमिट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इस क्वेश्चन को देख के ये तो पता लग रहा है ना कि f(1) की वैल्यू 8 होगी, तभी यहाँ कुछ लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात होगी। f(1) को अगर 8 करना है तो 10 - 2 अल्फा की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तो अल्फा 1 है, ये हम यहां से भी जज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप लिमिट में कंफ्यूज हो रहे हो, वो tan इनवर्स ऑफ tan x में कंफ्यूज हो रहे हो, तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दूं नीचे वाले पे, तो f1 की वैल्यू 8, f2 की वैल्यू 12 आनी चाहिए। वो सिर्फ तभी आएगी जब अल्फा की वैल्यू 1। गॉट इट? नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। limit n approaches to infinite, something like this is e to the power -7, where k and alpha are positive rational number, find the minimum value of this. All right, चलो एक एक करके सोचते हैं। अगर n इनफाइनाइट है, इफ n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू 0 जा रही है, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू इनफाइनाइट पे 1 जाएगी। गॉट इट? सो 1 की पावर 2 अल्फा प्लस 0 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, सो ये रफली 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट को e टू द पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस k रेज टू द पावर 2 अल्फा प्लस साइन 1 बाई n माइनस 1 fx माइनस 1 इंटू gx, दैट इज n। Am I correct? इसमें काम करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं 1 बाई x। सो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप सोचो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस k बाई n, दैट इज kx रेज टू द पावर 2 अल्फा विद नेगेटिव साइन प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? नाउ दिस इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस पे ना थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि फॉर्म तो ये 0 बाई 0 है, तो इस पे एक बार एल हॉस्पिटल लगाते हैं। अगर आप एल हॉस्पिटल नहीं लगाना चाहते हो, आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, इट इज -2 अल्फा 1 प्लस के एक्स रेज टू द पावर -2 अल्फा माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ के एक्स के साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन 1। अब आप इसमें ना x को उठा के 0 डाल दो, सो -2 अल्फा, दिस विल बी 1 इंटू के and this will be +1 +1. This is your answer, and they are saying it is e to the power -7. Yes, that means minus alpha k plus 1
is -7. So 2 alpha k goes 8. So alpha k की वैल्यू 4 आ गई. Alpha k is 4. So now they are asking for the minimum value of 1 plus k into 1 plus alpha. अब सोचो 1 plus k into 1 plus alpha will be what? 1 plus k plus alpha plus k alpha. Your value of k alpha is already 4, so it will be 5 plus k plus alpha. Now k plus alpha by 2 is more than or equal to k alpha raised to the power half. So k plus alpha is more than or equals to, this will be 2 to the 4. So 5 plus k plus alpha more than or equals to 9. So your minimum value of 1 plus k into 1 plus alpha is going to be 9. अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है. एक एमजीएम का यूज हो गया इसमें. आपसे इसने 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म को बड़ी ब्यूटीफुली पूछा हुआ है. गॉट इट? नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, बट जस्ट इस तरीके सवालों को भी आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, इसलिए आई हैव टेकन इट. देखो मुझे ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं तो मेरा काफी काम हो जाएगा. एक चीज सोचो, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7, कैन यू से इट इज मोर देन n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4? एंड डेफिनेटली इट इज लेस देन n स्क्वायर प्लस 9n, n square plus 6n plus 9. That means n square plus 5n plus 7 is less than n plus 3 whole square, and it is more than n plus 2 whole square. That means under root of this n square plus 5n plus 7, it will be less than n plus 3. It is greater than n plus 2. देखो इतना हमें अपने एंड पे सोचना होगा, ये कोई नहीं आके बताएगा. आज मैंने बता दिया, इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे आपको आगे मिलते रहेंगे, ये आपको अपने आप से सोचना होगा. अब दैट मीन्स व्हाट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 अंडर रूट इज गोइंग टू बी n प्लस 2. क्योंकि अगर ये वैल्यू दो इंटीजर्स n प्लस 2 और n प्लस 3 के बीच में आ रही है, दैट मीन्स इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज n प्लस 2. Now the question goes like, limit n approaches to infinite, under root of n square plus 5n plus 7 plus 5n plus 7 minus of n plus 2. This is this limit they are asking. Now rationalization is a key. So under root of n square plus 5n plus 7 minus plus n plus 2 divided by under root of n square plus 5n plus 7 plus n plus 2. Got it? अब इसको न्यूमरेटर में अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाता हूं, इट विल बिकम n plus 3. Denominator से if you take n common, it will be under root 1 plus 5 by n plus 7 by n square 1 plus 2 upon this. अब तो सब कुछ सॉर्टेड है और आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से भी n कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1 upon 2. सो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 1 upon 2. देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है और इस वैरायटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहेंगे. हमें बस ये समझना है कि वो जो अंडर रूट के अंदर में ग्रेटेस्ट वैल्यू दी हुई है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे मुझे दो वैल्यूज के बीच में मैनेज करना. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 2 ऑफ लिमिट कॉन्टिन्यूटी चैप्टर. बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन खुद से करें, तसल्ली से करें, सोच के समझ के सीख के करें. Alright, extremely beneficial and very good exercise. That would be all from my side today. Thank you so much.
अगली क्लास में एक्सरसाइज 3 के साथ में शुरू करेंगे, वो मल्टी क्रेट की एक्सरसाइज है, तो पहले से क्या रखा है, स्टेक्स हाई होते हैं। सॉरी, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके रखें, देन वी विल स्टार्ट विद दैट। टिल देन पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।